Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, as that you know, your first periodic test of English will be on 11 June Friday. So students, now you have only 2 days for preparing of English test from today. So that's why our today's topic is revision work. So students, today we shall complete our revision work of English language in our 2 days class. Okay, so that you could solve all question of your English test on Friday and you could achieve good marks in your English test. Okay, so students, today's your class is very important because today we are going to solve some important question of English language. Okay, so all students pay special attention to class and listen to my words clearly. Okay, let's see exercise A of this revision work. Your exercise A is answer the following questions. Answer means उत्तर दीजिए. The following means निम्नलिखित. Questions means प्रश्नों के. Answer the following questions. It means निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Okay, so let's see first number question. Your first number question is arrange the given words in alphabetical order. Arrange means व्यवस्थित करिए. Okay, the given means दिए हुए, words means शब्दों को, in means में, alphabetical means वर्णमाला, order means क्रम. Arrange the given words in alphabetical order. It's mean दिए हुए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करिए. Okay, student, we solve this question number first. Before it, I am going to explain you this word alphabetical order. Okay, so student, alphabetical order, it's mean order in which our letter of English arrange we call alphabetical order. एक ऐसा क्रम जिसमें हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जैसे अरेंज होती है ना, उसी ऑर्डर को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके, तो स्टूडेंट्स वी कैन टू से दैट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स. ओके, जो अंग्रेजी की वर्णमाला का क्रम होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, ये हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर्स का ऑर्डर होता है, अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षरों का क्रम होता है. ओके, जो हमारे A to Z का ऑर्डर होता है ना, कि हाँ इस हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है स्टार्ट होगी ए से एंड आफ्टर इट ए ऑलवेज कम बी एंड आफ्टर बी ऑलवेज कम सी. ओके, तो ये एक ऑर्डर होता है ना कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है. जब भी आप ए टू जेड राइट डाउन करते हैं तो आप ए फर्स्टली स्टार्ट कैसे करते हैं, ए से करते हैं, आफ्टर इट बी राइट डाउन करते हैं, आफ्टर इट सी राइट करते हैं. ओके, सी के बाद डी आता है, ऐसे तो राइट डाउन करते हैं ना, और जेड से एंडिंग हो जाएगी, है ना. तो ये एक डेफिनेट होता है, निश्चय होता है. ओके, अगर आप क्या करें कि ए के बाद डायरेक्ट सी ले आएँ, ओके, ए सी बी ई, तो ये अपने मन से नहीं कर सकते ना. तो ये जो ऑर्डर हो जाएगा ना अल्फ़ाबेट का, ओके, ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा, वर्णमाला का क्रम हो जाएगा हमारे लेटर्स का इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके, और ये करेक्ट ऑर्डर नहीं होगा, एक करेक्ट ऑर्डर नहीं होगा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर्स का. ओके, तो स्टूडेंट्स, आई मीन टू से दैट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स. ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स का ऑर्डर होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षरों का क्रम होता है, वही हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है. ओके, उसी को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. इट्स मीन वर्णमाला का क्रम कहते हैं. ओके, तो क्लियर हो गया ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि जिस ऑर्डर में हम लोग ए टू जेड राइट करते हैं ना, ओके, उसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सिंपल सी बात है. लेट्स सी ए नंबर words. Your A numbers words are bat, 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 ball, 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 bangle. Okay, bat, bat means होते हैं बल्ला, ball, ball means गेंद, ball, bangle means चूड़ी. Okay, तो student, we can see that the first letter it's same in all these words of your A number. Okay, A number में जो first letter सब में सेम है ना, bat it's start B, okay, ball it's also start B, bangle it's also start B. Okay, first letter same. Okay, now we are going to look at the second letter. Okay, second letter क्या है, ये जो words है, second letter B. Okay, the second letter of this word ball is V, the second letter of the next word bangle is E. Okay, so we can see that the starting two letters are same in all these words. सारे words में start के two letters सेम है. Okay, and we have read when starting two letters are same in some words, then we must look at the third letters for arrange some words in alphabetical order. अगर starting के two letters हमारे same हो तो हमें third letter को देखना चाहिए अपने words को alphabetical order में arrange करने के लिए. क्लियर ना, ये हम लोग read कर चुके हैं ना. तो now we are going to look at the third letter of these words to arrange these words in alphabetical order. Okay, so let's see third letters of these words. ये सब words के इन शब्दों के हम लोग third number letter देखने जा रहे हैं. Okay, the third letter of this word bat is T. Okay, third letter of this word ball is L. थर्ड लेटर ऑफ दिस वर्ड बैंगल इज एन. ओके, तो बैट का थर्ड लेटर क्या है, टी है ना, बॉल का एल है और बैंगल का एन है. ओके,
तो अब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल को ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, तो हमें इन लेटर्स को अरेंज करना, इन लेटर्स को अरेंज कर देंगे, इनके अकॉर्डिंग हम इन वर्ड्स को अरेंज कर लेंगे. ओके, तो स्टूडेंट नाउ वी हैव 3 लेटर्स TLN. ओके, एंड टेल मी दैट व्हाट्स कम बिफोर TLN. सबसे पहले क्या आता है. ओके, तो स्टूडेंट हम लोग को जब भी इसकी बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, हम क्या करेंगे, A to Z रीड करेंगे, ABCDEFGHIJKLMN. ओके, तो स्टूडेंट L पहले आया ना. ओके, तो L इट्स अ फर्स्टली कम. ओके, तो हम L पहले आया, उसके बाद N बाद में आया है ना, तो बॉल बैंगल. ओके, NOPQRST. ओके, T है ना, तो T सबसे लास्ट में आ रहा है. इट्स मीन कि बॉल कम्स फर्स्टली एंड आफ्टर इट बैंगल एंड आफ्टर इट बैट. क्लियर, बिकॉज L comes firstly and after it N and after it A. After it T. Clear. Just write down here, arrange these words in alphabetical order as ball, BALL ball, and after it bangle, BNGL bangle, and after it bat, BAT bat. Clear. Let's see B number words. Your B number words are ox, OX, ox means ball. Next man, MAN man, man means army. Next net, NET net, net means jal. Clear. So students, नाउ लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ दीज वर्ड्स. अब इन वर्ड्स के हम फर्स्ट लेटर देखेंगे, क्योंकि इसमें जो ये जो वर्ड्स है इनके जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, सेम नहीं है ना. ए नंबर में सेम थे स्टार्टिंग के 2 लेटर्स, तो हमने थर्ड नंबर देखा था, बट बी नंबर में हमारा क्या है, सेम लेटर से स्टार्ट नहीं है. ओके, तो लुक क्लियरली, ox it's start with O. The first letter of this word ox is O. The first letter of next word man is M, and the first letter of next word and net is N. Okay, ox का first letter O है, man का M है और net का N है. Okay, tell me that words come firstly of these words. in letters में sorry सबसे पहले क्या आता है, O M N में. Okay, तो read with me English alphabet. A B C D E F G H I J K L M N O. ओके स्टूडेंट, लिसन जल्दी. M N O, तो सबसे पहले M आ रहा है, एंड आफ्टर इट N और आफ्टर इट O है ना. तो स्टूडेंट M से हमारा कौन सा वर्ड बन रहा है, मैन. तो फर्स्टली हियर वी राइट मैन, MN मैन, एंड आफ्टर इट N आ रहा है ना, तो राइट डाउन नेट आफ्टर मैन. ओके, NET नेट, एंड आफ्टर इट O. ओके, OX ox, MNO है ना. So students, we have arranged these words in alphabetical order. Your correct alphabetical order of these words are man, man, net, NET net, and ox, OX ox. Clear. अब स्टूडेंट देखिए जो अरेंज किए वर्ड्स, उसमें देखो जो लेटर्स है M in man start with M letter, net start with N letter, and ox start with O letter. Okay, और MNO का बिल्कुल सही अरेंज हो गया ना. Okay, this is our first number question has completed. Now we are going to solve our second number question. Look at the second number questions. Your second number question is rewrite these jumbled words. Remember, use full stop. rewrite means स्टूडेंट दोबारा से लिखना है. दिस मीन्स ये jumbled words में स्टूडेंट ये जो jumbled words है, ये जो अरेंज नहीं है. ओके, तो उन वर्ड्स को हमें फिर से राइट करना है. रिमेंबर, यूज़ फुल स्टॉप. रिमेंबर मीन्स याद रखना है, यूज़ मीन्स प्रयोग करने का, फुल स्टॉप इज पूर्ण विराम. इट्स मीन कि हमें एज अ सेंटेंस राइट डाउन करना है. ओके, मतलब हमें इनको अरेंज करना है जैसे कि एक सेंटेंस बन जाए, और फुल स्टॉप लगाना नहीं फॉरगेट करना है, फुल स्टॉप लगाना है. ओके, let's see A number groups of words, A number jumbled words we can to say. Okay, let's see A number groups of words of these jumbled words. Okay, in oblique joy oblique Paul oblique age oblique jumping. Okay, तो look clearly, this tense the subject is Paul. Okay, of these groups of words. इसका जो subject है वो क्या है, Paul है. Okay, तो students firstly write down here Paul, PAUL Paul, and after it age, I is age, and after it jumping, JUMPING jumping, and after it I in, and last joy, JOY joy. Student, we have read the formula to making a sentence. एक sentence make करने का formula read कर चुके हैं, and the formula of a sentence is subject plus helping verb plus main verb plus object plus other word. यही तो फॉर्मूला होता है. तो Paul it's our subject, it's our helping verb, jumping it's our verb, and enjoy it's our other word, because here not any object नहीं है, तो क्या हो गया, जो हमारी verb थी उसके बाद हमने डायरेक्ट other words राइट डाउन कर ली. ओके, देन योर सेंटेंस बिकम Paul is jumping in joy. इट्स मीन Paul खुशी में कूद रहा है. ओके, joy मीन्स होता है खुशी या हर्ष, तो पाए खुशी में कूद रहा है. Paul मीन्स Paul, इट मीन्स है, जंपिंग मीन्स कूद रहा है, इन मीन्स में, जॉय मीन्स हर्ष या खुशी. Paul इज जंपिंग इन जॉय, इट्स मीन Paul खुशी में कूद रहा है. क्लियर ना. ओके, लेट्स सी बी नंबर ग्रुप्स ऑफ दीज जंपल वर्ड्स. ये जो वर्ड्स हैं इनका जंपल वर्ड्स देख लीजिए. ओके, बी नंबर आई ऑब्लिक मंजू, आई ऑब्लिक इन ऑब्लिक धी ऑब्लिक गार्डन ऑब्लिक सा. ओके, तो स्टूडेंट्स वी हैव रीड द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस. एक सेंटेंस को मेक करने का फॉर्मूला रीड कर चुके हैं. एंड द फॉर्मूला ऑफ अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
plus other word. Clear? तो I it's our subject. Firstly write here I. Okay. And after sa it's our क्या है स्टूडेंट, ये हमारा वर्ब है. ओके क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब दी हुई है. सा इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ सी. सी की सेकेंड फॉर्म होती है सा. सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा. ओके Manju it's a object in the garden, it's our other words. Clear? Then your sentence become I saw Manju in the garden. I means मैंने, सा means देखा, मंजू मीन्स मंजू को, इन दी गार्डन मीन्स बगीचा में. ओके बगीचे में. आई सा मंजू इन द गार्डन, मैंने मंजू को बगीचे में देखा. इट्स अ करेक्ट कंप्लीट सेंटेंस. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज पाउल इज जंपिंग इन जॉय. पाउल खुशी में कूद रहा है. क्लियर? योर बी नंबर सेंटेंस इज आई सा मंजू इन द गार्डन. मैंने मंजू को गार्डन में देखा, मैंने मंजू को बगीचे में देखा. क्लियर? लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. Add words to given words and make sentences. Add means add करिए, जोड़िए. ओके वर्ड्स मीन्स शब्दों को, टू गिवन मीन्स दिए हुए, वर्ड्स मीन्स शब्दों में, एंड मीन्स और, मेक सेंटेंसेस में सब सेंटेंसेस बनाइए, वाक्यों को बनाइए. ओके ऐड वर्ड्स टू गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस. दिए हुए शब्दों में शब्दों को जोड़िए, और शब्दों को जोड़िए और सेंटेंसेस बनाइए, वाक्यों को बनाइए. ओके सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. ओके योर फर्स्ट नंबर वर्ड्स आर किड्स आर. ओके किड्स मीन्स होता है स्टूडेंट बच्चे. ओके आर मीन्स है, किड्स आर बच्चे हैं. तो स्टूडेंट्स हियर वी आर गोइंग टू ऐड in this words playing in rain. Okay playing playing and in rain. Okay playing in rain. So then our sentence become kids are playing in rain. Okay kids means बच्चे, r means है, playing means खेल रहे हैं, in means में, rain means बारिश. Okay kids are playing in rain, it's mean बच्चे बारिश में खेल रहे हैं. क्लियर? तो योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस हैज़ कम्प्लीटेड ना. एंड स्टूडेंट लुक क्लियरली दैट यहाँ ये जो फर्स्ट नंबर सेंटेंस के एंड में ऑलरेडी क्या है, फुल स्टॉप यहाँ पे पुट ऑन हुआ है ना लास्ट में. ओके यहाँ पे ऑलरेडी जो फुल स्टॉप है वो पुट ऑन है, तो आई हैव नीड पुट ऑन फुल स्टॉप. ओके आफ्टर एंड दिस फर्स्ट नंबर ए नंबर सेंटेंस. एंड जो ए नंबर सेंटेंस के एंड में हमें कोई भी ज़रूरत नहीं फुल स्टॉप पुट ऑन करने की, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे फुल स्टॉप पुट ऑन है. सिर्फ हमें क्या करना है, वर्ड्स को ऐड करना है. ओके शब्दों को जोड़ना है. लेट्स सी बी नंबर वर्ड्स. योर बी नंबर वर्ड्स आर दे आर ब्लैंक फुल स्टॉप. ओके दे मीन्स वे, आर मीन्स है. ओके दे आर मीन्स वे हैं और फुल स्टॉप है लास्ट में. ओके तो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम वर्ड्स विथ इट्स वर्ड्स दे आर. ओके अब हम क्या कर रहे हैं, इस जो वर्ड्स हैं इनमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ वर्ड्स. ओके तो दे आर मीन्स वे हैं, तो हियर वी आर ऐड प्लेइंग कैरम. ओके प्लेइंग कैरम को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं. ओके PLAYING प्लेइंग CARROM कैरम. ओके प्लेइंग कैरम. कैरम इट्स योर इंडोर गेम. ओके इंडोर गेम होता है. ओके आप अपने होम में भी खेल सकते हैं. तो देन योर सेंटेंस बिकम दे आर प्लेइंग कैरम. वे कैरम खेल रहे हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स योर बी नंबर सेंटेंस हैज फिनिश्ड. लेट्स सी सी नंबर वर्ड्स. योर सी नंबर वर्ड्स आर माई फैमिली. माई मीन्स मेरा, फैमिली मीन्स परिवार. ओके तो स्टूडेंट्स योर सी नंबर वर्ड्स आर माई फैमिली ब्लैंक फुल स्टॉप. क्लियर? तो स्टूडेंट here we are going to add some words, and here we are adding words will go to picnic on Sunday. Okay WILL will you go to PICNIC picnic on SUNDAY Sunday. Okay then your sentence become my family will go to picnic on Sunday. मेरा परिवार रविवार को पिकनिक के लिए जाएगा. क्लियर? तो स्टूडेंट्स योर थर्ड नंबर क्वेश्चन हैज़ फिनिश्ड एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थर्ड नंबर क्वेश्चन. ओके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर फोर नंबर क्वेश्चन. योर फोर नंबर क्वेश्चन इज अरेंज लेटर्स एंड रीड मैसेज. ओके अरेंज मीन्स व्यवस्थित करिए, लेटर्स मीन्स अक्षरों को, एंड मीन्स और, रीड मीन्स पढ़िए, मैसेज मीन्स संदेश को. अरेंज लेटर्स एंड रीड मैसेज. ओके लेटर्स को अरेंज करिए, अक्षरों को व्यवस्थित करिए और मैसेज को रीड करिए और संदेश को पढ़िए. ओके वी कैन से दैट अक्षरों को व्यवस्थित करिए और संदेश को पढ़िए. ओके लेट्स सी अ नंबर लेटर्स. ओके आ नंबर लेटर्स देखिए H-T-Y-E. ओके एंड नेक्स्ट E-R-A and next L-A-B-Y-N-I-C. Okay so students arrange these letters. जब हम students when we arrange this letter then we find out this message, and your message is they are playing. Okay THEY they ARER PLAYING playing. वे खेल रहे हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट क्या किया, लुक लली फर्स्ट नंबर लेटर्स का जो ग्रुप है वो देखिए H-T-Y-E है ना. तो स्टूडेंट क्या किया, HT है तो हमने T को फर्स्टली राइट किया एंड आफ्टर T को. ओके
2 लेटर्स जो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसको टी को पहले कर दिया, एच को बाद में, तो टी एच हो गया. वाई ई है ना, तो हमने ई को पहले राइट कर दिया, वाई को बाद में, तो दे बन गया, टी एच ई वाई डे. इट्स मीन ये जो चेंजमेंट है ना, ये 2 लेटर्स में है. क्लियर. एंड आफ्टर इट ई ए आर है ना, तो हमने क्या किया, इसे बिल्कुल ही मूव करके रख दिया. ई आर है तो फर्स्ट हमने ए राइट किया, फिर आर को आर अपनी ही प्लेस मेरा ई को वो थोड़ा सा चेंज हो गया. ओके, ये ई आर ई जो हमारा वर्ड था ये राइट टू लेफ्ट साइड था, तो हमने इसे लेफ्ट टू राइट साइड मूव कर दिया. ओके, तो ए आर ई बन गया. और इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, प्लेइंग में 3 लेटर्स का अरेंजमेंट है. ओके, हमारा जो फर्स्ट 3 लेटर्स, तो थर्ड नंबर लेटर था पी था, तो उसे फर्स्ट लेटर बना दिया. आफ्टर जो फर्स्ट लेटर एल था उसे सेकंड लेटर बना दिया. ए जो सेकंड था उसे हमने थर्ड बना दिया. क्लियर. तो पी एल ए हो गया. वाई की जगह वाई ही रखा, और फिर एन आई जी को भी ऐसे ही रिप्लेस किया है. जो आई था वो हमारा सेकंड पे था, तो वो फर्स्ट पे आ गया. एन जो हमारा जो फर्स्ट पे नंबर पे था, एन आई जी की बात कर रही हूँ ओनली. ओके, तो एन जो सेकंड फर्स्ट पे था एन आई जी में सिर्फ, तो एन आई जी की बात कर रही हूँ सिर्फ. जो एन आई जी में जो हमारा फर्स्ट था एन, तो वो सेकंड पे आ गया और जी अपनी ही प्लेस पे रख लिया. तो आपका स्टूडेंट्स, वी हैव फाउंड दिस मैसेज. okay, your message is they are playing. okay, वे खेल रहे हैं. clear. let's see B number letters and read message. okay, arrange letters and read message. your letters are O dash G dash D. okay, O dash G dash D, S dash I, R dash G dash A dash E dash D. okay, this students, your message is God is great. you got I say GREAT great. okay, कैसे अरेंज किया है. ओके, तो क्या किया, पहले स्टूडेंट्स हमने जी को फर्स्ट नंबर पे राइट किया, एंड आफ्टर इट ओ को. ओके, डी का प्लेस डी रहा. इट्स मीन हमने ओ और जी के प्लेस को चेंज कर दिया. ओके, ओ और जी के प्लेस को एक्सचेंज किया है. ओ के प्लेस पे जी आ गया, जी के प्लेस पे ओ आ गया, और डी अपने ही प्लेस पे रहा. और इसमें एस आई जो था, इस एस आई को हमने क्या किया है, एस के प्लेस पे आई को कर दिया, आई के प्लेस को एस, मतलब क्रॉस चेंज किया है. ओके, और ग्रेड में हमने क्या किया, सेकंड पे जो जी था उसे फर्स्ट पे किया, फर्स्ट पे जो आर था उसे सेकंड पे किया. ओके, एंड आफ्टर इट जो हमारा 4 नंबर पे जो ई था उसे थर्ड नंबर पे किया, थर्ड नंबर पे जो ए था उसे 4 नंबर पे किया, टी सेम अपनी ही प्लेस पे रहा. देन योर मैसेज इज गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है. क्लियर. तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी 5 नंबर क्वेश्चन. 5 नंबर क्वेश्चन इज पुट क्वेश्चन मार्क्स आफ्टर द क्वेश्चन एंड फुल स्टॉप आफ्टर द स्टेटमेंट. ओके, पुट मीन्स रखिए, क्वेश्चन मार्क मीन्स स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क मीन्स स्टूडेंट होता है प्रश्नवाचक चिन्ह. ओके, जैसे जो हम लोग क्वेश्चन के एंड में यूज़ करते हैं ना, जिसे उसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क. पुट क्वेश्चन मार्क्स, इट्स मीन प्रश्नवाचक चिन्ह को रखिए. आफ्टर मीन्स बाद में, जो क्वेश्चन मीन्स प्लस के, एंड मीन्स और, फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम, जो एक पॉइंट टाइप का होता है ना उसे बोलते हैं फुल स्टॉप. आफ्टर मीन्स बाद में, दिस स्टेटमेंट मीन्स खत्म हो गया. इट्स मीन पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर द क्वेश्चन एंड फुल स्टॉप आफ्टर द स्टेटमेंट. I mean to say the meaning of this 5 number question is कि प्रश्नों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को और कथनों के अंत में पूर्ण विराम को रखिए. स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मार्क होता है ना वो कैसा होता है, एक हुक टाइप का होता है, और जो फुल स्टॉप होता है वो एक पॉइंट टाइप का होता है, बिंदी टाइप का होता है ना. तो लेट्स सी ए नंबर sentence and find out that it's a question or a statement. okay, and according the question or statement, put on here question mark or full stop. clear. Let's see first number question. Let's see first number sentence. okay, your first number sentence is I said and you Anu H we have A B I R T S D A Y birthday P R T Y party. Is Anu have a birthday party? क्या अनु के पास एक बर्थडे पार्टी है, या बोल सकती है कि क्या अनु की एक बर्थडे पार्टी है. ओके, तो इट्स अ क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन है क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, इज़ अनु हैव अ बर्थडे पार्टी, क्या अनु के पास एक बर्थडे पार्टी है, या क्या अनु की एक बर्थडे पार्टी है. ओके, क्या अनु की एक जन्मदिन पार्टी है. ओके, तो इट्स अ क्वेश्चन ना, क्वेश्चन है आपका ना. जैसे मैं आपसे बोलूँ व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू. ओके, आपका क्या नेम है, आप कितने साल के हैं, विच वेयर डू यू लीव. ओके, या व्हाट्स योर फेवरेट गेम, व्हाट्स योर फेवरेट चॉकलेट. ओके, तो ये सब क्वेश्चन है ना. तो स्टूडेंट वैसे ही सेम, इज अनु हैव अ बर्थडे पार्टी, इट्स अ क्वेश्चन. सो स्टूडेंट पुट ऑन क्वेश्चन मार्क इन द फर्स्ट नंबर बॉक्स. ओके, पुट ऑन क्वेश्चन मार्क इन दिस फर्स्ट नंबर बॉक्स. फर्स्ट नंबर बॉक्स पे क्वेश्चन मार्क पुट ऑन करेंगे. एक हुक जैसा है, हुक के बिलो एक पॉइंट लगा देते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन मार्क बन जाता है. क्लियर. क्वेश्चन मार्क्स मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह. लेट्स सी बी नंबर sentence. your B number sentence is mother was making lunch. mother means ma, was it's a past continuous tense singular form helping verb. it means he, making means बना रही, lunch means students the meal of afternoon. okay, तो आफ्टरनून का मील को बोलते हैं लंच. ओके, दोपहर के खाने को.
मदर वॉज मेकिंग लंच, माँ खाना बना रही थी, तो इट्स अ स्टेटमेंट। ओके, तो आप ये एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। ओके, ये क्वेश्चन तो नहीं है ना कि मदर वॉज मेकिंग लंच, माँ खाना बना रही थी, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं ना, कोई भी क्वेश्चन आस्क नहीं कर रहे हैं ना हम आपसे। ये क्या स्टेटमेंट है, कथन है। सो स्टूडेंट्स पुट ऑन फुल स्टॉप ऑन दिस सेकेंड नंबर बॉक्स। सेकेंड नंबर बॉक्स पे फुल स्टॉप पुट ऑन करिए, एक पॉइंट लगा देते, बिंदी लगा देते, उसे बोलते हैं फुल स्टॉप। क्लियर? देन योर सेंटेंस बिकम मदर वाज मेकिंग लंच फुल स्टॉप, इट्स मीन माँ खाना बना रही थी। क्लियर? लेट्स सी नंबर सेंटेंस। योर सी नंबर सेंटेंसेस, Is Monisha baking a cake? Is Monisha, BAKING baking, cake. Is Monisha baking a cake? क्या मोनिशा एक केक बना रही थी? ओके सॉरी, केक बना रही है, इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज मोनिशा बेकिंग अ केक? क्या मोनिशा केक बना रही है? ओके, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। क्या मोनिशा केक बना रही है? दिस इट्स अ क्वेश्चन। आई आस्क यू दैट इज मोनिशा बेकिंग अ केक। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या मोनिशा केक बना रही है, तो एक क्वेश्चन कर रही हूँ ना। तो स्टूडेंट पुट ऑन क्वेश्चन मार्क ऑन दिस थर्ड नंबर बॉक्स एंड योर सेंटेंस बिकम इज मोनिशा बेकिंग अ केक क्वेश्चन मार्क। क्या मोनिशा केक बना रही है? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? Okay, let's see B number sentence. So B number sentence is the last sentence of this question number 5. So look clearly, your D number sentence is, are you coming to the party? Okay, are you coming to the party? It's mean क्या आप पार्टी में आ रहे हैं? Okay, तो स्टूडेंट नाउ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि आर यू कमिंग टू द पार्टी? क्या पार्टी में आ रहे हैं? ओके, तो इट्स अ माई क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है ना। तो बिकॉज इट्स स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ड, और जो क्वेश्चन हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, वो क्वेश्चन मार्क सॉरी क्वेश्चन वर्ड या जैसे व्हाट, व्हेन और हु, ओके, विच ऐसे स्टार्ट होते हैं। हाउ, व्हाट, व्हेन इससे स्टार्ट होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे व्हाट, व्हेन, विच, हाउ, ओके, इन वर्ड से स्टार्ट हो, या हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, वुड, शुड, विट, विल, सेल, इनसे स्टार्ट हो, तो वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। आर यू कमिंग टू द पार्टी? क्या आप पार्टी में आ रहे हैं? तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ ना, तो इट्स अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट पुट ऑन क्वेश्चन मार्क ऑन दिस 4 नंबर बॉक्स विच इज़ लास्ट बॉक्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो जो हमारा जो लास्ट बॉक्स था ना, 4 नंबर बॉक्स, उस पर हमने क्या किया? क्वेश्चन मार्क को पुट ऑन कर दिया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स लेट्स सी अगेन, इज़ अनु हैव अ बर्थडे पार्टी? क्या अनु की बर्थडे पार्टी है? इट्स अ क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन मार्क यूज़ किया। एंड बी नंबर इज मदर वाज मेकिंग लंच? माँ खाना बना रही थी, इट्स अ स्टेटमेंट। सिस्टेंट पुट ऑन फुल स्टॉप ऑन दिस सेकेंड नंबर बॉक्स। योर थर्ड सी नंबर सेंटेंसेस इज मोनिशा बेकिंग अ केक? क्या मोनिशा एक केक बना रही है? It's a question, so students put on question mark on this third number box. And next sentence is, are you coming to the party? क्या पार्टी में आ रहे हैं? तो it's a question. Okay, so student put on question mark on this 4 number box. Clear? The student, we have completed our question number 5. Okay, so students that's why we have completed our exercise A of this revision work. Okay, and I hope you must have understood this exercise A. You have no problem in this exercise A. Okay, we have solved all questions of this exercise A of this revision work in our FAD English language notebook. ले हमने सारे क्वेश्चन रीड कर लिए। ओके, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एक्सरसाइज में। ओके, तो स्टूडेंट टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट complete exercise A of revision work in your FAIR English language notebook. It's a 2 days class. When your homework is that learn exercise A of revision work from your FAIR English language notebook. It's a 2 days homework. Okay, I'm going to explain your class 1 homework again, so listen clearly. Okay, class वर्क स्टूडेंट ये आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो नोटबुक है ना, जो सेकंड इंग्लिश की नोटबुक है इंग्लिश लैंग्वेज वाली ना, उस पर आपको एक्सरसाइज नोट डाउन करनी है। ओके, ओनली क्वेश्चन एंड क्वेश्चन एज इट इज़ नोट करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे? राइट आंसर बाय आंसर, अपने मन से आप क्या करेंगे? इसका आंसर राइट डाउन करेंगे। और जब आप आंसर राइट डाउन कर लेंगे ना, तो ये जो आंसर सीट है ना, उससे अपने आंसर्स को मैच करेंगे। ओके, कि आपने कितने करेक्ट आंसर दिए, कितने रॉन्ग दिए। क्या जब आंसर मैच कर लेंगे, देन सेंड मी वर्क है। उसके बाद अपना जो वर्क है इंग्लिश का, वो मुझे सेंड कर देंगे। आपका क्लास वर्क हो गया।
ओके। और स्टूडेंट आपका होमवर्क है कि जब आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ओके, मुझसे चेक कराने के बाद जो भी मिस्टेक होगी इस पर करेक्शन कर लेंगे, तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक से। क्लियर? तो स्टूडेंट योर क्लास वर्क इज एंड होमवर्क इज क्लियर ना? ओके, तो स्टूडेंट कंप्लीट योर क्लास वर्क, complete exercise A of revision work in your fair English language notebook and send me your work here. Thank you.